Hi everyone, welcome to your favorite cat club channel Quantifiers. My name is Sahil Arora. Now in this video, I'm going to talk about two very important things. First, how to handle that critical reasoning. Second, how to handle that decision making. And we will do it with an example. I'll give you a set from the previous year and I'll explain how to think logically in the that decision making section. सबसे पहले मैं बात करता हूँ अबाउट द क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट. क्रिटिकल रीजनिंग के लिए जैसा कि मैंने कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था सबको कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्री टेस्ट एवरी डे दैट विल बी पोस्टेड ऑन अवर फेसबुक ग्रुप एंड वेरी क्विकली ऑन अवर वेबसाइट आल्सो, राइट. जहां पे हम अपने उसको पोस्ट करेंगे क्वेश्चंस वगैरह को और अपने टेस्ट को पोस्ट करेंगे और आप कर सकते हैं उनको अटेम्प्ट फ्री में. दिस विल बी फ्री टेस्ट एंड दे विल रियली हेल्प यू बिकॉज दीज आर ऑल वेरी गुड क्रिटिकल रीजनिंग लेवल टेस्ट. अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट डिसीजन मेकिंग की स्पेसिफिकली. अगर मैं सबसे आसान लैंग्वेज में बात करूं ना, तो दैट डिसीजन मेकिंग मोहल्ले की वो आंटी है विच इज अ वेरी डिप्लोमेटिक वन, राइट. जो मोहल्ले की आंटी होती है ना, डिप्लोमेटिक आंटियां जो अपना सारा काम भी करा लेती हैं और किसी की साइड भी नहीं होती, राइट. दैट बिल्कुल वैसा डिसीजन मेकिंग में यू डू नॉट हैव टू गो टू एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स को हमेशा ही इग्नोर कर दो. ऑलवेज चूज द मिडिल पाथ and always complete the task at hand. Now, this is the basic crux of that decision making. जितनी ज्यादा try to make all parties happy. But this is the second priority. First priority is always complete the task in hand, always remain ethical. Now, ethical is a very gray area, but what is defined in the question is ethical, right? उसके accordingly हमें अपने questions को करना है and इस बात को ख्याल रखना है हमने, right? Let's understand a few things. Let's read a set and try to apply whatever I have written over here. Okay. Now I want you to pause the video, try this set, and then let's discuss it over. All right. Let me just. Okay. Now. I'll also read along. It says A to Z is a state-funded leading engineering college in the country, renowned for its teaching and its placements. Now A to Z aspires to be a global teacher and leader in research as well. A to Z has therefore decided to push for the better quality research for its from its newly recruited faculty members. In the past, a few faculty members were confirmed because of their exceptional teaching feedback, even though their research output was below par. All right. Currently, the Dean, in consultation with the Academic Council, has included the quality of research as mandatory requirement along with the teaching excellence. यानी कि पहले हमें पता है कि यार वो बिना रिसर्च क्वालिटीज को देख के भी रिक्रूट कर लेते थे अगर उसकी टीचिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अभी के लिए दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल है एक कॉलेज के लिए बिकॉज दे वांट टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. ऑलराइट. अब कर क्या रहे हैं वो प्रोबेशन में डाल रहे हैं. इनिशियली न्यू रिक्रूटेड faculty members are put on a probation for 3 years. Either they are confirmed or their probation is extended or their services are terminated. So after the probation, the following things are possible. Either you will get extension or you will get confirmed or you will be tata bye bye. खत्म हो गया आपका. ठीक है. So these are the three options after the. So Aparna has joined the social science department. So the lady in the limelight, Aparna has joined the social science department of A to Z 2 years back. She is amongst the many faculty members recruited after the new norms for confirmation were introduced. All right. So Aparna has to contribute towards the research. ठीक है. उसको new norms के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था.
She completed her doctorate from a reputed university in the USA with a significant research contribution. And already she had a very significant research contribution, which means that she had a good background. She was capable of delivering exceptional research, and that's why she was hired, right? And however, after joining A to Z, Aparna got deeply involved in social outreach as COVID-19 was spreading. तो अपर्णा थोड़ा सोशल वर्क में, सोशल आउटरीच में लग गई. कोविड-19 स्प्रेड हो रहा था. Though her social outreach has given her immense satisfaction, she has nothing to show against her social research contributions. All right. अब उसने सोशल कॉजेज में तो बहुत कुछ किया जो कि शायद उसके पर्सनल गोल्स को कंप्लीट कर रहा था या थोड़ा बहुत कॉलेज के गोल्स को कंप्लीट कर रहा था, लेकिन जो कॉलेज का मेन गोल है ना, दैट वाज रिसर्च, उसके अगेंस्ट उसने कुछ ज्यादा नहीं किया और उसकी जो टीचिंग इफेक्टिवनेस थी वो भी हुई. तो मतलब जो कॉलेज के दो फंडे थे वो यहाँ पे फेल हो रहे थे. हर कंफर्मेशन इज ड्यू इन ए ईयर. तो बेसिकली उसको 2 साल हो चुके हैं, इस साल 1 साल के बाद उसकी कंफर्मेशन ड्यू है. द डीन ड्यूरिंग द एनुअल अप्रेजल ऑफ अपर्णा रियलाइजेस दैट हर research contribution needs considerable investment of time. Now, these are the keywords: considerable investment of time and efforts. All right, मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी चाहिए और एफर्ट भी चाहिए. He is concerned that her performance could set a wrong precedent for the new faculty recruits. यानी कि अगर हमने उसको जाने दिया तो बाकी लोगों के ऊपर गलत असर पड़ेगा. The dean wants to communicate to the new faculty recruits that the contribution is critical. अब डीन को कुछ ऐसा एक्शन लेना है जिससे वो बाकी फैकल्टी मेंबर्स को बता सके कि ये कितनी क्रिटिकल चीज है. अब यहाँ पे ना सबसे पहले बिफोर आई गो इनटू डिटेल एक प्रॉब्लम समझते हैं. प्रॉब्लम इन हैंड है क्या कि अपर्णा एक इंटेलिजेंट फैकल्टी है जिसको उन्होंने चूज किया. वो सोशल आउटरीच कर रही है कोविड-19 की. अब डीन देख रहा है कि उसकी जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए जिस फील्ड में वहां नहीं आ रही. अब उसको ये भी करना है कि बाकी सब लोग खुश रहे, है ना. बाकी सब लोगों को गलत इंडिकेशन ना जाए कि आपका ऐसे ही चलता रहेगा. एंड रिसर्च बहुत जरूरी है. अब बिफोर आई इवन मूव इनटू द क्वेश्चंस, नो, एक बार मैं समझूंगा कि अगर कोई ऑप्शन मेरे पास ऐसा इन्वॉल्व होके आता है जिसमें मुझे दिखता है कि अपर्णा को बाहर निकाल दो, मैं उसको अवॉइड करूंगा बिफोर आई इवन गो देयर, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं उसी डायरेक्शन में जा सकता है, राइट, बिकॉज दैट वुड बी टू हार्श. और अपर्णा को लीनियंटली जाने भी नहीं दूंगा बिकॉज दैट वुड बी द अदर साइड ऑफ एक्सट्रीम पेंडुलम, राइट. मैंने आपको कहा था कि हमें एक्सट्रीम चॉइस इग्नोर करनी है. तो पहली एक्सट्रीम चॉइस क्या है कि उसको लेट गो कर दो, और दूसरी एक्सट्रीम चॉइसेस क्या, विदाउट एक्शन, राइट. एंड दूसरी एक्सट्रीम चॉइसेस क्या है, उसको एक्सपेल कर दो. तो ये दोनों तो मेरी आउट हो जाती है. अब जो भी ऑप्शन इनके इन्वॉल्व होंगे वो मैं आउट कर दूंगा और बाकियों को देखूंगा. सो दैट में अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार अगर आपको नहीं समझ आ रहा कौन सा ऑप्शन है तो आप ये देख लो कौन सा ऑप्शन पक्का ही नहीं है. ऑलराइट. Which of the following will best help the dean in achieving the objective while being fair to Aparna? उसने अपर्णा से फेयर भी होना है, मतलब उसको एक वार्निंग सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन भी देनी है, राइट. एंड उसको हमने ये बताना भी है कि तुम्हारी वजह से क्या फर्क पड़ सकता है. तो पहला है अप्रिशिएट अपर्णा सोशल आउटरीच बट एडवाइज हर टू फोकस ऑन रिसर्च एंड टीचिंग कंट्रीब्यूशन एज देयर एसेंशियल फॉर कंफर्मेशन. तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट, कि हम उसकी जो वो कर रही है उसको हम थोड़ा वो भी कर रहे हैं, बढ़ाई उसको कह रहे हैं कि बढ़िया कर रहे हो. और उसके बाद हम उसको कह रहे हैं कि तुम टीचिंग कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दो बिकॉज दैट विल डेफिनेटली मेजर योर परफॉर्मेंस. Extend Aparna's probation by an additional year by reminding her about the research and teaching contribution needed for confirmation. अब देखो सेकंड केस में क्या हो रहा है. सेकंड केस में ना आप उसका प्रोबेशन पीरियड एडिशनली एक्सटेंड कर रहे हो. अभी उसने बोला था कि किसी को भी रॉन्ग प्रेसिडेंट नहीं देना. तो बेसिकली कहना है से कि यार ये, और अगर इन दोनों ए और बी को कंपेयर करना हो तो ए इज अ बेटर चॉइस एज कंपेयर टू बी, बिकॉज बी में बाकी सब लोगों को भी ये लग सकता है कि यार अगर इसको लीनियंटली अपर्णा को जाने दिया है तो हमारा भी अगर 1 साल से एक्सटेंड होता तो कोई बात नहीं है, राइट. तो ए और बी में से मतलब बी इज नॉट अ बैड ऑप्शन बट ए इज अ बेटर ऑप्शन एज विद रिस्पेक्ट टू बी. सजेस्ट अपर्णा टू स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू जॉब. तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया. शी इज रियली गुड फैकल्टी और सब कुछ है, उसका बैकग्राउंड नहीं जाना चाहिए. exhort Aparna to suspend her social outreach till the end of probation and to focus. exhort करना मतलब उसको स्टॉप कर देना और सस्पेंड कर देना, ठीक है, उसको फोर्स करना इस चीज के लिए, ये भी बहुत गलत चीज है, बहुत एक्सट्रीम है. ए इज फार बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू दीज टू राइट नाउ. ठीक है. तो अगर आपको कहीं मन में लग रहा हो कि हाँ हाँ ये सही भी है, तो आप ये याद रखना कि आप ऑलरेडी एक अच्छा ऑप्शन आपके दिमाग में है, उसके कंपैरिजन में कहाँ पे खड़े हैं.
इंक्रीजिंग हर टीचिंग एंड रिसर्च रिक्वायरमेंट वाइल एक्सटेंडेड हर प्रोविजन बाय 2 years। ये तो प्रीटी मच सिमिलर टू दिस हो गया। ठीक है, तो एक और डीएम का पॉइंट, सिमिलर ऑप्शंस को भी आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो फिफ्थ भी एलिमिनेट हो गया। अब मैंने बाय एलिमिनेशन ही सोच लिया दैट ए इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर एंड दैट इज द राइट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। 1 year on, अपर्णा कंटिन्यूज विद हर सोशल वर्क। एक और ईयर निकल जाता है, अपर्णा सोशल वर्क करती रहती है। ग्रेजुअली शी गेट्स क्लोजर टू द एंड ऑफ प्रोबेशन एंड शी हैज नॉट मच टू शो अगेंस्ट हर टीचिंग एंड रिसर्च कंट्रीब्यूशन, अ वेरी worrisome feature. However, her social work has been widely appreciated by the local media। यानी कि लोकल मीडिया में उसकी बड़ी वाहवाही हो रही है, शहर में उसका थोड़ा सा नाम बन गया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वांट्स अपर्णा टू टेक अ लार्जर रोल, और चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं कि वो एक लार्जर रोल ले और गवर्नमेंट को असिस्ट करे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ देखनी है बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन, कि जो अपर्णा की पर्सनल कंट्रीब्यूशन है वो टुवर्ड्स द सोशल वर्क हो रही है, टुवर्ड्स द सोसाइटी हो रही है। अपर्णा का जो मेन काम है जिसके लिए उसको हायर किया गया है उस पे इम्पैक्ट पड़ा है, राइट, दैट इज इम्पैक्टेड। सो इस बात को ख्याल में रखते हुए अब मैं आगे की चीजें सोचूंगा। The dean is afraid that not confronting Aparna might prompt her to leave the institution. That not okay, कि अगर हम उसको कंफर्म नहीं करते तो वो इंस्टीट्यूट छोड़ के चली जाएगी। सेंडिंग अ रॉन्ग सिग्नल टू आउटसाइड वर्ल्ड, जिससे कि बाहर रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा कि हमारा कॉलेज कैसा है, एक ऐसी फैकल्टी है जो इतना कुछ कर रही है देश शहर के लिए, इतना उसको फेवरेटिज्म मिल रहा है, उसको बाहर निकाल दिया तो उससे रेपुटेशन में फर्क पड़ेगा कॉलेज की। तो वो उसको ये नहीं करना चाहता, यानी कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, ये बात उसके मन में है। राइट, पहला बात उसके मन में क्या है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। मैं लिख रहा हूं डोंट लेट अपर्णा गो। राइट, ये उसका एक वन ऑफ द मोटिव्स है। सेकंड क्या है, गिव द मैसेज टू अदर फैकल्टीज। तो बाकी जो है उनको हमने ऐसा ये बताना है कि आपका जो मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन चॉइसेस क्या आते हैं। क्या क्या है, कंफर्म अपर्णा बट फ्रीज हर इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशन अंटिल हर रिसर्च कंट्रीब्यूशंस आर इंप्रूविंग, राइट, आर एज पर द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मतलब बहुत बेकार ऑप्शन भी नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन भी नहीं है, बट फ्रीज कर देना अगेन एक लेवरेज दे रही है, तो ठीक ठीक ऑप्शन है, मतलब नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। लेट्स ऑफर टू क्रिएट अ नॉन टीचिंग पोजीशन, ये तो बिल्कुल ही बाहर हो गया, क्योंकि जिस काम के लिए उसको हायर किया गया है वो काम पूरा फोरफिट हो गया। राइट, बट एंड टर्मिनेट हर फ्रॉम टीचिंग बहुत ही गलत ऑप्शन है। ऑफर अपर्णा 5 year कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन आफ्टर व्हिच शी हैज टू लीव इरिस्पेक्टिव, अगेन डजंट मेक एनी सेंस, लीव कर रही है वो इरिस्पेक्टिव, उसको 5 साल की पोजीशन दे रहे हो, कुछ नहीं बनता। ओके, extend Aparna's probation by 3 years and tell her that she would have to leave the if research and teaching on it does not improve in the period. No. Okay. और should have to leave if the children. Okay. ठीक है, फिर भी बेटर ऑप्शन है हमारा कि इसका जो प्रोबेशन बढ़ा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपने अपनी वो नहीं मिटी। ठीक है, ठीक है, दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन इन फैक्ट, राइट, कि आप उसका प्रोबेशन बढ़ा रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आपका पहला पार्ट भी नहीं हो रहा कि यू आर नॉट लेटिंग हर गो। सेकंड, यू आर आल्सो लीविंग अ मैसेज टू एवरीवन एल्स कि यार आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। और राइट, ठीक है। डिक्लेयर दैट एचएमए डिजर्व टू बी ट्रीटेड एक्सेप्शनली, ये तो बहुत ही गलत हो गया। ठीक है, so now we are left between 1 and 4, two choices, again two very good choices, very close one. Now in the first one you are freezing her increments, जो कि उसकी पर्सनल ग्रोथ पे और एक टीचिंग स्टैंडर्ड पे कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है, राइट, और आप उसको कंफर्म कर दे रहे हो। कंफर्म मतलब कि आपने प्रोबेशन के बाद सीधा कंफर्म ही कर दिया उसको, राइट, और यहाँ पे आप उसका प्रोबेशन ही एक्सटेंड कर रहे हो, विच मीन दैट शी इज स्टिल अंडर द गॉज। उसने अपना काम पूरा नहीं किया, वो स्टिल अंडर द लाइमलाइट है कि वो काम पूरा करेगी तो कंफर्म होगी। यहाँ पे वो कंफर्म नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली फोर्थ मेक मच बेटर सेंस एज कंपेयर टू वन जिसमें वो कंफर्म भी नहीं हुई है एंड शी हैज टू वर्क अकॉर्डिंगली एंड एल्स शी विल लीव। तो इससे ये भी लोगों को जाएगा कि यार देखो, अगर 3 साल इसने अपना काम पूरा नहीं किया अगले 3 साल में तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट वाइटल थिंग दैट यू हैव टू डू। All right, so fourth should be the answer in this case. All right, now let's move to the next one. A few months later, Aparna, during an interview with the local media in
inadvertently expresses her fear that she might be let go by A to Z. Now this is a very unethical thing to do. Unethical भी कहूंगा मतलब कि she shouldn't have done this in any way because she has not met her teaching and research requirement. हालांकि उसने ये बोला कि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करी, उसने अपना फॉल्ट बताया. ऑलराइट. Consequently, the academic council urges the dean to review the faculty confirmation policy. तो academic council कहता है कि यार अपनी जो faculty confirmation policy है उसको ध्यान से देखा जाए. The dean, however, believes that any policy in the change is setback to the institute aspiration becoming a global leader in research. तो यानी कि अगर वो पॉलिसी चेंज करते हैं तो उसका विजन डिस्टर्ब हो जाएगा. तो विजन को मेंटेन रखना चाहता है, ये उसकी प्रायोरिटी है. ठीक है, और वो इस सिचुएशन से भी थोड़ा बचना चाहता है. ऑलराइट, लेट्स सी द ऑप्शन. Convey to Aparna that the institute is eager to retain her, however, emphasize that she should focus on research to get confirmed. ठीक है जी, वेरी गुड ऑप्शन. कि उसका देखो अपर्णा का एक फियर था, राइट. अपर्णा ने एक फियर जाहिर किया कि उसको निकाल देंगे. तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसको कन्वे कर रहे हो कि आप रहो, आप आपको हम रखना चाहते हैं, लेकिन आपका एम्फेसिस रिसर्च पर होना चाहिए. सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. वन, लेट्स रीड. Tell Aparna that she is being let go for insulting the college. Again, a very extreme thing to do. आपको देखो, इन एन आइडियल सिचुएशन आप सोचते दुनिया में कि ऐसे ही होता है, बट डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं सोचना है. गिव एन इंटरव्यू टू लोकल एंड शेयर Aparna's. Again, you are going eye and eye for an eye makes the whole world blind, totally out of the context. Confirm Aparna, but ask her to issue a public statement, acknowledge the importance of A to Z to give the research, the importance A to Z, but ask her to issue a public statement. सी इफ यू आर कंफर्मिंग अपर्णा, तो इससे अगेन जो आपका एक मेन मोटिव था कि बाकी लोगों पे क्या असर जा रहा है, दैट इज गोइंग रॉन्ग. कि आप प्रोबेशन पे काम पूरा नहीं किया जस्ट बिकॉज आपने डरा दिया, आपने कुछ इंटरव्यू वगैरह दिया, तो उसके लिए हम आपको कंफर्म कर रहे हैं. सो दैट विल सेंड द रॉन्ग इंप्रेशन ऑन एवरीवन. सो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन एज कंपेयर टू वन. वन इज डेफिनेटली मच बेटर देन फोर, राइट. समटाइम्स यू डोंट नीड अ वैलिड जस्टिफिकेशन कि ये पक्का ही क्यों बाहर होगा. Just this assurance that first option is better than 4 should be allowing your soul to let it go, कि जाने दो इसको. और लास्ट पढ़ते हैं. Confirm Aparna but make it clear that her future promotion will be tied. Again, इसमें confirm हो रहा है तो मैं पढ़ भी नहीं रहा कि पहले तो उसको confirm कर दो और बाद में उसको कहो कि फ्यूचर में आपको ये करोगे. तो इससे वही उसका मैसेज नहीं जा रहा कि जो फियर है उसको आप पहले तो वो नहीं कर रहे ढंग से, ये नहीं बता रहे उसको कि क्या कर रहे हो. और कंफर्म जब पढ़ना कर रहे हो तो इसका सबसे बड़ा मतलब यही जा रहा है कि आप उसकी इंटरव्यू की वजह से उसको कंफर्म कर रहे हो और उसको आगे बोल रहे हो कि आगे के लिए आपने ये करना है, बट जो उसने किया हुआ है उसको उसको कोई सिला नहीं दे रहे. तो उसको ये बताना भी जरूरी है कि उसका एम्फेसिस कहाँ होना चाहिए था, और ये भी. सो वन डेफिनेटली इज द बेस्ट चॉइस इन दिस क्वेश्चन, राइट. आई होप आपको ये सेट समझ आया हो, आपको समझ आया हो कि अपने डिसीजन मेकिंग में कैसे जाना है. एक इंटरेस्टिंग सी बात है, 12 तारीख से हम जैट का कोर्स शुरू करेंगे, 12 दिसंबर, right? And that would be a very affordable course for anyone who is targeting that. So अगर आपको पसंद आई एक्सप्लेनेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. शुक्रिया सो मच. हैव अ गुड डे.